Excuse me, sir. Oh, Sir, this is a newspaper you have requested. thank you so much. Do you need anything else, sir? No, thank you. Thank you, sir. Have a safe flight. थैंक यू। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त किसी फ्लाइट में बैठा हूं तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इस वक्त हूं एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्लासरूम में, जहां पर आज हम करने वाले हैं एविएशन इंडस्ट्री और केबिन क्रू ट्रेनिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन को अनप्लग्ड आज के इन्फो अनप्लग्ड में। मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। केबिन क्रू की ट्रेनिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के लिए हम आप पहुंचे हैं अक्सा इंटरनेशनल के इस क्लासरूम में, जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर टू फ्लाइट का एक रेप्लिका क्रिएट करता है। और मेरे साथ मौजूद है इमना, जो कि एक केबिन क्रू ट्रेनर है, प्रोफेशनल ट्रेनर है और 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इमना टू इंदौर टॉक। So much for having me. बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर। इमना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जैसे कि जो केबिन क्रू के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर उसके लिए ट्रेनिंग सीख कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको समझनी रहती हैं, लाइक वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट शुड हैव, or a person who likes to have his career on in cabin crew part or in the aviation industry, where does the training starts from? Okay, so to be a cabin crew, first of all, you have to be willing to be a cabin crew. You need to have a little bit of knowledge. Okay. Secondly, their physical criteria has to be perfect, because वो जितना मतलब they might want to become a cabin crew, but if they don't have the physical criteria, then we cannot take it. So there's a height criteria. They should not be tattoos. They should not be scars. Okay. So once they qualify all that, then we go to the next step. The next step is we have to make sure they are properly well groomed, because उन लोगों का जो है, उन लोगों का best version निकालना है. So what we do is we do the grooming class, which I personally take. Okay. After the grooming class, we do personality development. After the personality development, we also give them English classes. English classes, we have one of the best instructor. Okay. And he teaches a Vedic veteran course, and he's the only one in the world. Okay, wow. Yes. Great. And we have other travel management courses, and after that, after all these classes comes aviation class. In aviation class, we train them how to crack the interview, how Okay. to perform in the training, because company जो लोग उन लोगों जो hire करते हैं, even there they have to undergo a training and they have to pass the exam. If they don't pass Okay. the exam, after one more chance, they'll be asked to leave. And even after cracking the first round on the hands-on job, I'll be teaching them what to expect and how to be in the job, how to handle situations, because there's so many things. If there's a heart attack, you have to become a doctor. If there's fire in the oven, you have to become a firefighter. If there's a hijack, you have to actually become a policeman. Right. And you do service. So there's so many aspects. So you have to be open-minded. You need to understand the roles and responsibilities of a cabin crew, what it takes to be a cabin crew. You have to be proactive. Identify the 4 vector forces that influence the aircraft. So how does the aircraft fly? There are 4 forces. Yes, ma'am. How may I help you? I'm not feeling well. I need a blanket. Okay, ma'am. So, did you take any medicine? Yeah. Okay, ma'am. I'll just come with the blanket. Ma'am, here is a blanket and a bottle for you. Thank you so much. Ma'am, if you need anything else, I will just call away. Namaste, sir. Namaste. Can you please show me the boarding pass? Thank you, sir. Oh, Mr. Prasad. Nice to see you again, sir, on the board. Please allow me to assist your seat. So, this is your seat for Charlie. This is your boarding pass, sir. Sir, don't hesitate to let me know if you need anything. I'm call away again. I'm just a call away. I'm just a call away, sir. If you need anything, please let me know. Excellent.
साथ कॉन्वर्सेशन में इस वक्त हैं राहुल पांडे सर, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं अक्सा इंटरनेशनल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। सर से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार कैसे इस पेंडेमिक के बाद एविएशन इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। केबिन क्रू ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है क्या चेंज होगा अब इस पेंडेमिक के बाद, क्या चीज़ें नहीं होगी, वो सारी डिटेल आज हम सर से बात करेंगे। सर शुरुआत करता हूं क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद इंडस्ट्री एक नए रूप से उभर कर सामने आई है। हमने केबिन क्रू के स्टाफ को देखा, जिस तरीके से फ्रंट लाइन वॉरियर्स, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों, जिस तरीके से काम कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री का भी जो स्टाफ था वो भी डट कर खड़ा था, पूरे फुल प्रूफ सेफ्टी गैजेट के साथ, अपनी सिक्योरिटी प्लस अपने पैसेंजर्स की भी सिक्योरिटी का ध्यान कर रहा था। क्या लगता है आपको, क्या एस्पेक्ट अब एविएशन इंडस्ट्री का आपको दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सनील जी आपको और इंदौर टॉक की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। और अगर मैं बात करूं तो फ्रंट वॉरियर्स में भी अगर देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्री के जो कैबिन क्रू या पायलट थे, ये भी कहीं ना कहीं फ्रंट वॉरियर्स के रूप में आते हैं। एविएशन इंडस्ट्री अब धीरे धीरे पटरी पे धीरे धीरे आ रही है। डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रॉबैक था उसके लिए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और वैक्सीनेशन भी होने लगा है, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी ये, बिकॉज ये डेवलप्ड इंडस्ट्री अभी नहीं हुई है इंडिया में। तो यहाँ पे डेवलपिंग जो स्टेज है उसमें अभी बहुत सारे चांसेस हैं टू बिकम अ बिग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, इसमें अब एक और एस्पेक्ट जो आता है, क्योंकि केबिन क्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस इंडस्ट्री का एक बहुत मेजर हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोफेशन है जो यंगस्टर्स को, यूथ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करता है। पर अब इस पेंडेमिक के बाद ना एक परिदृश्य बदला, एक सोच बदली है, थोड़ा सा डर भी मन में आया है, वहीं कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से और ज़्यादा बढ़ी है। तो क्या लगता है आपको, अब जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो इस प्रोफेशन को करना चाहता है, अपना कैरियर इसमें बनाना चाहता है, किन बातों का अब उसको ध्यान रखना पड़ेगा अगर फॉर एग्जाम्पल वो केबिन क्रू का हिस्सा बनना चाहता है? तो देखिए, 2 से 3 बातों का स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें सबसे पहले हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। जो पहली प्रायोरिटी है, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पे हो और सडनली आपको कोई इमरजेंसी होती है या कि कोई भी ऐसे सिचुएशंस आती है, जैसा आपने अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम पुलिस का भी काम करते हैं, हम फायर सेफ्टी का भी काम करते हैं और हम एज ए डॉक्टर का भी काम करते हैं। तो कैबिन क्रू बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, आपका पर्सनालिटी उस हिसाब से डेवलप यहाँ हम करते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए इमीडिएटली एक्शन ले सको। जी। रही बात अगर रिक्रूटमेंट की बात करिए या इनके कैरियर्स की बात हम करते हैं कैबिन क्रू की, तो कैरियर में हमारा कैबिन क्रू का सेक्टर वो सेक्टर है जो अभी भी अछूता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि हिंदुस्तान में आने वाले टाइम पे 40 लाख वैकेंसीज होंगी। अच्छा। इन एविएशन ओनली। दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस इज द वर्ड ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। उसका सिंपल रीजन ये है कि हमारे यहाँ, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत कम ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है 100 नए एयरपोर्ट लाने की। जब 100 नए एयरपोर्ट आएंगे तो ये कौन से लोग होंगे जो उसमें एम्प्लॉय के रूप में जाएंगे? ये इंडस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें नौकरी कैसे लगती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे फ्लाइट में जाओ और आपको वो खाना और पानी पिलाएंगे जो भी कैबिन क्रू मेंबर्स हैं। ऐसी मेंटेलिटी रही है, बिकॉज बहुत से लोगों ने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। मैं इसमें थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई लेवल की, सेंस ऑफ, जो आपने बताया सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उनका जो टॉप प्रायोरिटीज में आता है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर। 30,000 फीट की दूरी में, ऊंचाई पे अगर आप उड़ रहे हो और अचानक से किसी को भी, कोई बच्चा गिर गया जमीन पे और उसको ब्लड आने लगा, तो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल इट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कैबिन क्रू। कैबिन क्रू सिर्फ एक नाम नहीं है, या ऐसा नहीं कि सैलरी अच्छी है और कैरियर बहुत शानदार है, इसमें ऐसा नहीं है। कैबिन क्रू एक वो जिम्मेदारी का है जिसमें पेंडेमिक में भी उन्होंने ये प्रूफ किया है कि किस तरह से किसी भी पैसेंजर को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ एक प्लेस से अनदर प्लेस ले जाया जाता है। बिल्कुल। तो एक बहुत ब्रॉडर सेंस में, अगर हम ब्रॉडर उसमें देखते हैं, तो कैबिन क्रू बहुत बड़ा वास्ट क्षेत्र है जिसमें कैरियर्स बहुत शानदार होते हैं और आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं कोविड की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
आपको बहुत सारी नए एसओपीज का पालन करना पड़ रहा है। जैसे पहले आप 1 घंटे पहले चेक इन करते थे, अब आपको 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है, बिकॉज आपको उन सारे एसओपी से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस बढ़ गए हैं, प्रोसेसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके लिए कैबिन क्रू भी पूरी तरह तैयार है और हम भी उनको उसी तरह की तैयारी यहाँ पे देते हैं। आपने सर ये वर्ड जो केबिन क्रू, जो टेक्निकल वर्ड होता है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो स्टाफ से डिनोट करता है, मैं इसको थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाइड करने की करूंगा रिक्वेस्ट, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, तो ये केबिन क्रू जो ये शब्द होता है, ये क्या होता है, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, वो इसलिए भी लाजमी बनता है क्योंकि मैं अभी कॉन्वर्सेशन में राहुल पांडे सर के साथ में हूँ, जो कि अक्सा इंटरनेशनल के फाउंडर डायरेक्टर हैं। अक्सा इंटरनेशनल जो कि एक प्रोफेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और पिछले 7-8 सालों से ये इंडस्ट्री में कितने ही मेरे ख्याल से लोग हैं जिनको एक प्रोफेशनल एयर होस्टेस या ग्राउंड स्टाफ या फ्लाइट स्टूवर्ड मेरे ख्याल से यहाँ से बन के बच्चे निकले हैं। तो इसलिए सवाल और भी लाजमी हो जाता है, तो सर ये केबिन क्रू एक्चुअली क्या है, इसके हिस्से क्या क्या होते हैं? देखिए, केबिन क्रू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होती है तो हम उसको एयर होस्टेस बोलते हैं। अच्छा। और जो मेल कैंडिडेट होता है उसको हम फ्लाइट स्टीवर्ड बोलते हैं। बाप रे, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से लोगों को आज क्लियर होगा कि सब एयर होस्टेस मतलब कि सब मेल फीमेल दोनों को ही समझते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम फ्लाइट स्टीवर्ड बोलते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनको हम एयर हॉस्टेस बोलते हैं। इफ यू कंबाइन बोथ द थिंग्स देन इट बिकम कैबिन क्रू। कैबिन क्रू मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन है, बीच का शब्द है। अच्छा। यानी आप मेल को भी कैबिन क्रू बोल सकते हो और फीमेल को भी बोल सकते हो। ओके। तो ये एग्जैक्टली कैबिन क्रू का मतलब है। ये पायलट से अलग हो गए? पायलट से अलग होते हैं। ओके, यस। और इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि केबिन क्रू का हिस्सा बनने के लिए जिस हिसाब से बताया, एक मैंडेटरी जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो मेरे ख्याल से जनरली सबको मालूम भी है कि हमारी पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस इनिशियल या लैंग्वेज पे कमांड, या मान लो मैं छोटे शहर से आया हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस, वो जेलअप होना, वो अगर नहीं है, तो क्या वाकई में उसे इस प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए, या कुछ उम्मीद की कुछ किरण है? आपका क्या वर्जन है? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें कैबिन क्रू की, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस इन 7 से 8 सालों में रहा है, सबसे ज्यादा जो एक हमारे आउटस्कर्ट्स ऑफ इंदौर या विलेज एरिया के या जो टाउन के बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा कैबिन क्रू के लिए वो लालायित होते हैं। अच्छा, हाँ। उसका सिंपल रीजन ये है, बिकॉज उनके सपने होते हैं कि हमें ये बनना है। हाँ। अगर हम शहर की बात करें, शहरी क्षेत्रों में बहुत से लोगों को पता होता है कि ठीक है ये कैबिन क्रू है या हम इसमें जा सकते हैं इजीली, बट जो बाहर के बच्चे आते हैं उनमें 2 से 3 चीजों की भ्रमित होते हैं। वो पहला होता है उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का होना। इंग्लिश बोलना उनके लिए एक टास्क होता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं तो क्या हम कैबिन क्रू बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल नहीं। अक्सा इंटरनेशनल सबसे पहले 3 चीजों पे फोकस करता है। पहली है आपकी ग्रूमिंग, दैट इज कॉल्ड अच्छा दिखो। दूसरा, अच्छा दिखो का मतलब ये नहीं कि आप शाहरुख खान या सलमान खान या कैटरीना कैफ ही दिखो। अच्छा मीन्स प्लीजेंट आपको दिखना, प्लीजेंट पर्सनालिटी चाहिए उसके लिए। अच्छा दिखो, अच्छा बोलो। अच्छा बोलो में हम यूटिलाइज करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को। यहाँ पे हम 3 लेयर की इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पहली इंग्लिश बेसिक इंग्लिश, देन वी विल गो फॉर एडवांस इंग्लिश एंड देन बूस्टर क्लासेस। तो 3 लेयर। जिसको ABCD नहीं आती उसके ऊपर ABCD आती, उसके ऊपर कुछ नहीं आता, हम वहां से प्रिपेयर करते हैं बच्चे को। बाप रे, इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हर बच्चे का अलग अलग ग्रास्प क्वालिटी होती है। वो अलग अलग तरीके से सोचने और समझने की क्षमता होती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ जो बच्चा बैठता है वो इक्वल है हमारे लिए। हम सबकी शुरुआत 0 से करते हैं और उनको 100 तक ले जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड आपका बिहेवियर। तो अच्छा दिखना, अच्छा बोलना और अच्छा बिहेव करना, ये बेसिक तैयारी है जो हम इनिशियल लेवल पे करवाते हैं। ग्रूमिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तीनों चीज करने के बाद फिर वो टेक्निकल मॉड्यूल्स पे जाते हैं ताकि उनको समझ में भी आए। पर इसमें तो सर फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब मैं अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो एक केबिन क्रू ट्रेनिंग का ड्यूरेशन टाइम कितना समय में? 1 साल का ट्रेनिंग हम करवाते हैं और हमने डिवाइड कर रखा है मॉड्यूल वाइज। अच्छा। सबसे पहले ग्रूमिंग होगी जो 1 मंथ या 15 to 20 डेज की होती है। फिर 3 मंथ्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। सबसे ज्यादा एम्फेसाइज हम करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को, बिकॉज सारी चीजें सीखना बहुत आसान है, बट टू स्पीक इन इंग्लिश दैट इज मोर टफ
फॉर एनीवन दोज हु डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उसके लिए हम 3 महीने का वक्त लेते हैं, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 मंथ, फिर बाकी सारे टेक्निकल मॉड्यूल्स बनाते हैं। अक्सा इंटरनेशनल कभी भी एग्जाम नहीं लेता, मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे बच्चों को, ये अक्सा इंटरनेशनल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज एन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम बच्चे को सिखाते हैं, ना कि पढ़ाते हैं। मैं अपने ऑडियंस को भी एक बात बताना चाहूँगा कि आज का हमारा ये वीडियो करने का भी यही मकसद था, क्योंकि क्या हो गया कि आजकल सब बच्चों के ऊपर प्रेशर, या पेरेंट्स का भी प्रेशर अपने बच्चों को लेके, वही मार्क्स, वही कन्वेंशनल कोर्सेज, ये डिग्री और ये, पर आज की तारीख में इतने नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज हो गए, या मैं बताऊँ कि इतनी स्ट्रीम्स हो गई हैं प्रोफेशनल, जिनकी आज की तारीख में प्रोफेशनल ट्रेनिंग या पढ़ाई के माध्यम से ट्रेनिंग मिलने लग गई है, जिसे हम अनकन्वेंशनल कोर्सेज बोलते हैं, जिसमें बहुत ही लुक्रेटिव कैरियर बनाया जा सकता है, और वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। इसमें सामने वाला जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसका मन से इंटरेस्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी और ज्यादा अच्छा देता है। तो आज का हमारा कुल मिला के इस इंफॉर्मेशन को बताने का भी मकसद भी ये था। सर, इसमें एक चीज और जोड़ी, जैसे एक मिथ और है इस इंडस्ट्री से, इस प्रोफेशन से जुड़ा, कि लोग ऐसा मानते हैं कि लाइक जैसे एयर होस्टेस बनना या फ्लाइट स्टूवर्ड बनना या केबिन क्रू का हिस्सा बनना एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का प्रोफेशन होता है, कि वंस यू आर एजेड या वंस यू आर हैव, मतलब जैसे एक टाइम होने के बाद फिर आप आगे उसमें करियर कुछ ऐसा बचता नहीं, क्योंकि ये मोरओवर यूथ के लिए प्रोफेशन है, ऐसा बोला जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं इस मिथ को आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगा और दर्शकों को भी यही बताना चाहूंगा कि कैबिन क्रू का कैरियर, फ्लाइंग का कैरियर एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसमें 2 मिथ है। एक मैं और जोड़ूंगा कि जो कैबिन क्रू बनता है, यानी लड़कियां या लड़के जो बन जाते हैं, उनकी शादी नहीं कर सकते वो, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि सर वो एयर होस्टेस बन गए तो शादी क्या नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके एस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो कैबिन क्रू 12th के बाद होता है, पहली बात। उसके सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, हाइट, वेट और BMI होता है, जिसको हम चेक करके कैबिन क्रू के लिए ले जाते हैं। जो मिथ है कि ये बहुत कम टाइम का या शॉर्ट टाइम का कैरियर होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूं, आप कैबिन क्रू बनते हैं, आपकी पहले तो ट्रेनिंग होगी, यहां से ट्रेनिंग होने के बाद आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद एक और जो उनकी कॉन्फिडेंशियल ट्रेनिंग होती है किसी भी एयरलाइंस की, वो आपकी होती है। जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको कौन ट्रेनिंग कराएगा? वही ना जो 33 से 35 साल फ्लाई कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस रहा है। तो वो क्या जॉब नहीं कर रहा होगा, फ्री में होगा? ऐसा नहीं है। वो जॉब करता है हेड ऑफिस में। यस, आपका हेड का यानी 2 पहलू होते हैं। पहला तो आप लीड करते हो एज ए कैबिन क्रू, जो एक्सपीरियंस 30 से 35 साल फ्लाइंग एक्सपीरियंस है आपका, वो जब नए रिक्रूटर्स आते हैं, जो नए कैबिन क्रू आते हैं, उनको सिखाते हैं। तो हेड ऑफिस में शेड्यूलिंग करना, फ्लाइट की शेड्यूलिंग करना, कहां से कौन सी एयरलाइन जा रही है उसका शेड्यूल, टाइम शेड्यूल देखना, उस हिसाब से कैबिन क्रू का रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग प्रोसेस लाना, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराना, ये सारा कुछ कैबिन क्रू ही कराते हैं। तो कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि एक एज तक ही, जब तक आप सुंदर दिखते हो या एज है आप तब तक ही कर सकते हो, बिल्कुल मिथ है ये। आप उसके बाद बैक ऑफिस में जाकर, हेड ऑफिस में जाकर बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं। एक और एस्पेक्ट में सर आपसे जानना, क्योंकि आज लाइक जैसे आप जैसे इंस्टीट्यूट में ना सिर्फ केबिन क्रू की ट्रेनिंग दी जाती है, इस एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा एक सेक्टर और है, लाइक जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टाफ, जो कि एयरपोर्ट पे उस वक्त ड्यूटी दे रहा होता है जहां पे लगेज स्कैनिंग होती है, टिकटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सारी चीजें होती है, और हर एयरलाइंस का अपना एक ग्राउंड स्टाफ हम देखने को मिलता है एयरपोर्ट पे। तो वो वाले रिक्रूटमेंट भी क्या इस केबिन क्रू का हिस्सा होते हैं, या उनका ट्रेनिंग का एस्पेक्ट क्या, और उस ट्रेनिंग के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि जब ग्राउंड स्टाफ में कोई सेलेक्ट होता है तो उसका इंटरेक्शन बहुत तरह के लोगों के साथ होता है। जैसे सबसे पहले कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मान लीजिए कोई पैसेंजर, 3 से 4 पैसेंजर डिले हो गए, और इसमें टाइम की 1-1 मिनट की एविएशन इंडस्ट्री में वैल्यू बहुत होती है। कोई भी फ्लाइट 1 भी मिनट आपने डिले कभी शायद गलती से या किसी कारण से हो जाती है, या तो टेक्निकल इशू है या कोई मेडिकल इशू है, या इस वजह से होती है, नहीं तो जनरली तो पहली प्रायोरिटी ग्राउंड स्टाफ की होती है, वो उनको टाइम टू टाइम मैनेज करना। अब 120 लोगों को 1 घंटे में चेक इन कराना, चेक इन कराने के बाद उनकी प्रोसेस होना, ये सारा कुछ 5 तरह के डिपार्टमेंट एयरपोर्ट पे जनरली हम देखते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आपके लगेज जितने भी होते हैं वो सारा एक बार स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग होने के बाद आपका वो सिक्योरिटी मेजर सारे चेक करेंगे, कोई ऐसा अनवांटेड चीज तो आपने नहीं रखी है जो आप वहां नहीं ले जा सकते या वो प्रोहिबिटेड है। दूसरा प्रोसेस होता है चेक इन काउंटर्स। आप जाके लाइन लगा के खड़े होते हैं, वो चेक इन आपका निकाल के देते हैं, बैग में आपके स्कैन करके वो लगाते हैं, उसके बाद वो बैगेज आपका चला जाता है सामान के लिए रखने के लिए वहां पे। तीसरा डिपार्टमेंट होता है लाउंजेस।
3 प्रोसेस से आप गुजरते हैं, सिक्योरिटी, देन चेक इन काउंटर्स, देन आपका बैगेज मैनेजमेंट उसके साथ ही हो जाता है, फिर आप लाउंजेस में जाकर बैठते हैं, अनाउंसमेंट होती है, वहां पे भी लोग होते हैं कुछ गाइड करने के लिए, जैसे कोई इन्फेंट हो गया या कोई ओल्ड लेडी हो गई, तो जो ग्राउंड स्टाफ की जिम्मेदारियां हैं वो भी कैबिन क्रू से कहीं तक कम नहीं है। बहुत फास्ट डिसीजन इसमें भी लेने पड़ते हैं, तो ये बहुत वास्ट है। कार्गो का जैसे आप देख लीजिए, कार्गो डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है अभी। कार्गो की वजह से ही, अगर मैं बात करूं, वैक्सीनेशन जितनी भी हमारी आ रही है वो सारे कार्गो डिपार्टमेंट की वजह से आ रही है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो ग्राउंड स्टाफ के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो सर जैसे एक एस्पेक्ट तो केबिन क्रू ट्रेनिंग का हो गया, दूसरा होता है जो ग्राउंड स्टाफ रहता है, जो हमने एयरपोर्ट्स पे देखा, जो हर एयरलाइंस का अपना एक ग्रुप होता है, उनका ट्रेनिंग का कैसा रहता है कॉन्सेप्ट? क्या वो भी पूरा केबिन क्रू जैसा ही पूरा कॉन्सेप्ट है या कुछ अलग रहता है? देखिए, बाकी चीजें जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग है, बाकी सारा कुछ एक जैसा होता है। 2 से 3 चीजें हैं जो स्पेशली हम उनको अलग से ट्रेनिंग ग्राउंड स्टाफ की देते हैं। पहला, हाउ टू मैनेज द क्राउड, क्राउड को हैंडल कैसे करना है। दूसरा, उसमें टिकटिंग, चेक इन काउंटर्स जो होते हैं उसमें उनको स्पीड से कैसे टिकटिंग की जाए उनकी। तीसरा, डूज एंड डोंट्स, क्या आप ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। और कार्गो डिपार्टमेंट में सारे उसका स्टॉक मैनेजमेंट का नॉलेज होना, ये 3 से 4 चीजें जो अलग से सिखाई जाती हैं स्पेशली फॉर द ग्राउंड ड्यूटी ऑपरेशंस। शायद मेरे ख्याल से जो एकदम ऐसा सोच रहे हो कि यार मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा तो बनना है, पर शायद एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टूवर्ड बनना इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैं क्या ग्राउंड स्टाफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सर इसमें जो मैं अगर बात करूं मॉनेटरी टर्म्स में, सैलरी पैकेजेस या इसके करियर के ड्यूरेशन, ये भी लगभग उतना ही इक्विवेलेंट रहता है या कम रहता है, कैसा रहता है? देखिए, इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। शुरू में जब आप सेलेक्ट होते हैं ग्राउंड स्टाफ में, जो सैलरी 18 से 25,000 रुपए की समथिंग होती है आपकी, बट जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एक्सपीरियंस आपको ग्राउंड हैंडलिंग का होता जाता है, तो इसमें जो कैरियर ग्रोथ है वो बहुत तेजी से है। हर 6 महीने में आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आप एयरपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं उस कंपनी के। अच्छा। तो उस चीज को हैंडल करना, बिकॉज इट विल कम बाय द एक्सपीरियंस ओनली। ये जैसे जैसे आप उस चीज में वर्किंग में ढलते जाओगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी पोजीशनिंग भी उसी हिसाब से होती जाएगी। मोर ओवर एक मैनेजरियल जॉब है ये। एग्जैक्टली, मैनेजमेंट देखना है, पूरा मैनेजमेंट देखना है, और लोगों को अच्छे से टाइम पे, ऑन टाइम उनको कैसे उनको फ्लाइट पे ले जाना, ये बेसिक रोल और सबसे फंडामेंटल रोल होता है। हाउ टू send the travelers on time, on board जिसको बोलते हैं। ऑन बोर्ड एक शब्द होता है, ऑन बोर्ड कैसे करना है वो बहुत तेजी से करना पड़ता है उसको। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने जिस हिसाब से एक्सपेक्ट्स एक्सप्लेन करें, तो जब मेरे ख्याल से इससे पहले एयर ट्रैवल करते वक्त या फ्लाइट में बैठते वक्त आपने ये नहीं सोचा होगा कि जिन जिन लोगों से आप अलग अलग पायदान पे मिलते हैं, जिन जिन एयरलाइंस के स्टाफ से, चाहे फिर वो चेक इन के टाइम पे हो, लगेज के टाइम पे हो, बोर्डिंग के टाइम पे हो, तो कितने सारे एस्पेक्ट्स जो है कवर होते हैं, और हर एयरलाइंस का अपना एक यूनिक ग्रुप ऑफ स्टाफ होता है जो इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यही अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस हैं और यही इनकी अनकन्वेंशनल कोर्सेज जो हैं आज के टाइम में डेवलप, क्योंकि पहले मेरे ख्याल से एक टाइम ऐसा होता होगा कि सीधे आदमी जॉब अप्लाई करता होगा, फिर ये ट्रेनिंग वाला पार्ट मेरे ख्याल से एयरलाइंस पे डिपेंड होता होगा। पर अब क्योंकि चीजें प्रोफेशनल हो गई हैं, तो अब ये चीज कोर्सेज आप पहले से ही तैयारी करके कर सकते हैं, तो शायद इंटरव्यू क्रैक करने का और चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, सारी कंपनियां, अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस ट्रेनिंग की जरूरत क्या है। देखिए, कोई भी एयरलाइंस नहीं चाहती कि उसके पास रॉ मटेरियल जाए। रॉ मटेरियल मतलब उसको ABCD भी एविएशन की नहीं पता, और वो उनको हायर करें, फिर उनको पूरी ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग देने के बाद उनको मतलब ट्रेनिंग की भी जो उनको सैलरी देनी पड़ेगी और उसके बाद सैलरी भी दें। ऐसा कोई भी एयरलाइंस या कोई भी बिजनेस नहीं चाहता। एवरीबडी वांट्स रेडी मटेरियल। हमने आज पैंट शर्ट जींस पहन रखी है, रेडी है, हमारे पास टाइम नहीं कि हम उसको पहले सेलेक्ट करें, टेलर के पास जाएं, फिर उसको सिलाएं। वैसा ही हर कंपनी चाहती है स्किल्ड प्रोफेशनल। अक्सा इंटरनेशनल आपको स्किल्ड प्रोफेशनल बनाता है, वो हर चीज सिखाता है जो एक्चुअली में जाके आपको जॉब करनी है। यहाँ पे हम आपको वही सिखाते हैं जो आपको जॉब में करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शंस इसलिए ज्यादा होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जब ऑलरेडी एक रेडीमेड मटेरियल उनको मिलता है, तो वो सिलेक्शन के जो चांसेस है या वो सेलेक्ट इसलिए ज्यादा कर लेते हैं लोगों को, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्किल्ड प्रोफेशनल, नॉट अ रॉ मटेरियल। तो जैसे एविएशन इंडस्ट्री भी सर एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी आपको बहुत हम्बल एक प्रेजेंटेशन देना है, बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर्स, अपने पैसेंजर्स को टैकल करना है। तो आज जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एविएशन की, एंड रेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री होती है, या माइट बी और भी जो अदर इंडस्ट्री, ट्रैवल मैनेजमेंट है,
तो इन सब का भी जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो कैसे टैकल किया जाता है? क्या ये वाली ट्रेनिंग भी अक्सर इंटरनेशनल का हिस्सा है? बिल्कुल, हम 4 इंडस्ट्रीज पे ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें एविएशन में 2 तरह की ट्रेनिंग देते हैं। पहला होता है कैबिन क्रू, दूसरा जैसा आपने बताया एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी ऑपरेशन। इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज। ये चारों इंडस्ट्री इंटरकनेक्टेड है। जितने ज्यादा लोग फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे वो रुकेंगे कहाँ? होटल में रुकेंगे तो उनकी ट्रैवलिंग का और बाकी सारी चीजों का कौन देखेगा? ट्रैवल मैनेजमेंट देखेगा। ट्रैवल मैनेजमेंट देखेगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो कस्टमर सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए हम 4 इंडस्ट्रीज पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आप एविएशन में जाकर, किसी का होता है कि मैं फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनूं किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में, या फॉरेन जाऊं, तो उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ होती है। मेरे बच्चे अभी आज पूरी दुनिया के हर कोने में वर्किंग कर रहे हैं इन ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसमें उनको टिकटिंग, बुकिंग, कैंसिलेशन, रिजर्वेशन, आइटिनरी प्लानिंग, इस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। और दे आर वर्किंग इन अ वेरी स्मूदी वे, और उनकी लाइफस्टाइल चेंज है पूरी। सब कुछ कंपनी देती है। इंडस्ट्री अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन में आएगा तो इंटरनेशनल वापस से ट्रैवलिंग बढ़ेगी। अभी लोग रुके हुए हैं, डोमेस्टिक तो हो ही रहा है। कार्गो एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो है इंडिया में अब इंदौर में रिसेंटली लॉन्च, इंदौर में इनफैक्ट रिसेंटली हमारे पास इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा हो गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या वो लास्ट आपका वर्डिक्ट होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी भी इस इंडस्ट्री में प्रोफेशन या करियर बनाने का सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले करियर की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं हम। अगर हम करियर की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हो, चाहे वो फिनेंस मिनिस्टर रहे हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट के रहे हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सबका कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट एंड बूमिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है। और इंडिया में, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि ये डेवलपिंग इंडस्ट्री है, ना कि डेवलप्ड है। तो जब डेवलपिंग इंडस्ट्रीज होती है, हमारा इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं। तो यहाँ पे हर चीज का स्कोप बहुत बड़ा है। हर चीज के स्कोप में आपको बहुत ज्यादा वाइड देखने की जरूरत है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, ये हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और मुझे लगता है कि कैरियर इन एविएशन एक बहुत शानदार कैरियर है। अब बहुत ज्यादा आने वाले टाइम पे इसमें वैकेंसीज आने वाली हैं, इसलिए लोगों को अभी टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने आप को स्किल्ड प्रोफेशनल बनाना चाहिए और साथ साथ इसको आगे कैरियर की तरह लेना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ही फ्रूटफुल कैरियर से इंडस्ट्री में बनाया जा सकता है, और अभी तो ये डेवलपिंग मोड में है। जब डेवलप्ड होगी तो और कितने एस्पेक्ट्स ओपन होंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना, एयरपोर्ट सर एक तरीके से मॉल जैसे हो गए। एक एक कंपनी के आउटलेट, आपको एक्स्ट्रा टाइम बिताना है, आज फुल फैसिलिटी एक एयरपोर्ट लाउंज में दी जाती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो ये थे हमारे साथ में राहुल पांडे सर, अक्सा इंटरनेशनल के फाउंडर एंड डायरेक्टर, जिन्होंने एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन को अनप्लग करने में हमारी मदद करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इंफॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और देखते रहें, फॉलो करते रहें इंदौर टॉक। धन्यवाद, नमस्कार।